let's talk about this chapter biotechnology, wherein this chapter is going to score you 5 marks. So basically, this word biotechnology was used first by Carl Erke. Okay, and as far as definition, how do you actually define biotechnology? It's to grow something or to form something for the benefit of man. You have changed something into something else. But why did we do that? To bring some benefit to man. For example, you talk about the traditional method. बायोटेक्नोलॉजी वर्ड जिनको मालूम नहीं था उन लोगों ने अपने किचन में बायोटेक्नोलॉजी की है. लाइक इन द क्लास वी टॉक्ड अबाउट the formation of curd, right? Our great great grandmothers who have formed curd every day, they used to convert milk into curd. This was a kind of biotechnology they implemented in their simple kitchen. They didn't know what was happening, but all they know, what they were doing was good for the stomach, good for the gut of their children, for their family, right? So basically, let's see what exactly biotechnology, how exactly you can define biotechnology. So we define it from here under biotechnology. So we are on page 272. The development and utilization of biological forms, matlab living beings. Biological form means living being, living organism को use करके या उनके products और प्रोसेसेस फॉर ऑब्टेनिंग, या कोई प्रोसेस यूज़ करके उसका फ़ायदा क्या होगा. या तो हमने बायोलॉजिकल फॉर्म यूज़ किया है, या प्रोडक्ट यूज़ किया है, या कोई पर्टिकुलर प्रोसेस यूज़ किया है फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू मैन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ. सो जो हम अगर बेसिकली बात करेंगे कर्ड की, तो इट्स एक्चुअली टॉकिंग अबाउट गेटिंग यू मोर ऑफ विटामिन B12. Lot many vitamins are there other than milk, right? Milk में तो सिर्फ प्रोटीन ही होगा and then basic minerals होंगे, लेकिन curd has got vitamin B12, vitamin B2. There's so many varieties of vitamin in curd, which is very good for your gut health. So once again, we'll understand the definition. It's the development and utilization of biological forms. बायोलॉजिकल फॉर्म इसलिए बोल रहे हैं, वी आर यूजिंग माइक्रोब्स, वी आर यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बायोलॉजिकल फॉर्म्स, प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस, ओके, फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम goodness or benefits for man and other forms of life. Even though I said microorganism, but that doesn't mean only microorganism. It can talk about, we can talk about the alteration done in the gene also, gene inside our body, right? And when you categorize this biotechnology, they have been classified into two types of biotechnology. One is the ट्रेडिशनल एंड अनदर इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. ट्रेडिशनल के अंदर आ जाता है हमारा घर पे ही वाइन का, कर्ड का, घी का, चीज़ का, ये सब बनाने घर पे ही जो बनते थे पुराने ज़माने से. इट्स कॉल्ड एज ट्रेडिशनल एंड ऑल्सो कॉल्ड एज आर्ट ऑफ किचन, राइट? एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द modern, we are talking about the new techniques employed by our scientists for making something good. Some technique has changed. Let's talk about the very important technique. We'll understand a most common biotechnological technique was recombinant DNA. recombinant DNA मतलब अगर आप बोलोगे ये आपका DNA है, आपको याद है DNA का स्ट्रक्चर? आई डोंट नो. सो let's go to DNA first. Let's understand the structure of DNA, which we have already done. Inside the cell, this is a cell. In the center, you have the nucleus. And in the nucleus, you have the substance, that's the DNA, or the genetic information transformer, that carries the information from one generation to the next. And your DNA is
written as deoxyribonucleic acid. Now, it's the very important structure inside the cell of our body and in all the forms of life on earth. If you talk about the basic structure, helical structure, double stranded. अब ये helical structure जुड़े कैसे हैं? उनका जो basic unit है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड. वी आर गोइंग टू यूज़ दीज वर्ड्स. ये सारे शब्द यूज़ किए जाएंगे, इसीलिए आई एम रिवाइजिंग इट. सो फॉस्फेट, शुगर एंड द नाइट्रोजनस बेस, तीनों कंपोनेंट एक साथ मिलके बनाते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड, बेसिक यूनिट ऑफ योर डीएनए. सो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ आ जाएंगे एंड दे आर कॉल्ड एज द कंप्लीट डीएनए. So nitrogenous bases, you know, 4 are there: adenine, guanine, cytosine and thymine. Adenine and guanine, purines, cytosine and thymine, pyrimidines. And in pyrimidine you have uracil also, which is not mentioned here in this video. So when you talk about a structure of DNA, you should be sure हाउ द DNA इज़ कनेक्टेड. DNA कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे वो एक दूसरे से, ये जो एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करिए, एक फॉस्फेट, एक शुगर, एक नाइट्रोजन बेस, दूसरे फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस और शुगर के साथ कैसे जुड़ा है. हाउ एग्जैक्टली. दीज आर द साइंटिस्ट हु एक्चुअली वर्कड इन एंड गेव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट DNA, जिसके वजह से हम आज बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ पाए हैं. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, let's pause for a minute. यहाँ पे फॉस्फर है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है. यू कैन सी देयर इज 2 types of bonding. One bond is between the nitrogenous base. दूसरा बॉन्ड है between the sugar phosphorus. इस तरफ भी शुगर फॉस्फोरस, राइट. दिस जो साइड का बॉन्ड है इसको हम बोलेंगे, आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू पीपल, वी कॉल दैट एज फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड. क्या बोलेंगे हम इसे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. तो आगे की चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू हियर दिस वर्ड अगेन एंड अगेन. तब आप कंफ्यूज मत होना, व्हाट इज दिस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, व्हाट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. यहाँ की बॉन्ड मतलब फॉस्फेट एंड दिस शुगर, फॉस्फेट एंड शुगर इज बॉन्डिंग टुगेदर थ्रू दिस. ओके, बट बीच की जो बॉन्डिंग है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. Okay, so let's go back to the chapter. जो बायोटेक्नोलॉजी है वो 2 प्रिंसिपल के बेसिस पे वर्क करता है. वी हैव 2 मेन टेक्निक्स इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी. 2 तरीके यूज़ करते हैं. वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, अंडरलाइन दिस, and the other is chemical engineering. So let's understand what is genetic engineering. Genetic engineering means that deals with alternation of genetic material. Page 273, first line देखो. Genetic engineering deals with alternation of जेनेटिक मटेरियल. अभी क्या बताया था मैंने? DNA एंड RNA कुछ ऑर्गेनिज्म में, राइट. सो ये जब अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? इट इज़ RNA. सो द ऑल्टरनेशन हैज़ हैपेंड, तभी तो नया म्यूटेंट वेराइटी निकला है कोरोना का. सो दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ओनली that has come on us. People won't accept it, but this is the form that is made in the lab. Let's talk about the genetic engineering part 1. That's like the principle. बायोटेक्नोलॉजी के 2 मेन प्रिंसिपल है. जब हम DNA में या RNA में बदलाव लाते हैं, दैट्स कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके, और जब हम
कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड केमिकल इंजीनियरिंग. मतलब एक अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे मीन्स स्टेराइल एनवायरनमेंट में, अंडरलाइन आफ्टर दैट केमिकल इंजीनियरिंग इज डिफाइंड. केमिकल इन थर्ड लाइन, केमिकल इंजीनियरिंग डील्स विद मेंटेनिंग अ स्टेराइल एनवायरनमेंट. मतलब लैब के अंदर हम एक क्लीन एनवायरनमेंट, स्टेराइल मीन्स नो माइक्रोब्स, स्टेराइल एनवायरनमेंट में जब हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे कि वैक्सीन, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड for the benefit of mankind, that is called chemical engineering. Okay, so biotechnology has two techniques. One is genetic engineering and another is chemical engineering. Genetic means हमारे जेनेटिक और जीन जिसमें प्रेजेंट है हमारे सेल में, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा डीएनए है, तो डीएनए में जब कुछ ऑल्टर करते हैं हम उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. और जब केमिकल यूज़ करके एनवायरनमेंट को स्टेराइल रख के, लेबोरेटरी के स्टेराइल एनवायरनमेंट, जब हम कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं फॉर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड लाइक एंटीबॉडीज, वैक्सीन, एंजाइम, दैट्स कॉल्ड केमिकल इंजीनियरिंग. ओके, नाउ one among them, or we can say we are going to understand in detail the genetic part. genetic engineering को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे. जो अभी मैंने in the first page we have done, that's in biotechnology, page number 272. common biotechnology method is rDNA, recombinant DNA. Now what is recombinant DNA? Let's see that for an example. We have a video. Recombinant DNA technology is a technique in which a fragment of DNA from a donor cell or organism is isolated and then inserted into the DNA of another cell or organism. This allows scientists to introduce a new characteristic into an organism by inserting a new gene into it. Recombinant DNA technology involves 4 major steps. Firstly, a DNA fragment containing the gene of interest is obtained from a donor cell. Secondly, a suitable plasmid is obtained from a bacterium. Plasmids are commonly used as vectors to transfer the gene of interest into a host cell for expression. Thirdly, the DNA fragment containing the gene of interest is cut using an enzyme called restriction enzyme. This enzyme acts like scissors. It recognizes a specific base sequence and cuts the DNA at a specific point. On the other hand, the same restriction enzyme is used to cut open the plasmid. Lastly, the DNA fragment containing the gene of interest is inserted into the open plasmid with the help of another enzyme called DNA ligase. This enzyme acts like glue. It catalyzes the joining of the DNA fragment and the plasmid. A recombinant plasmid is finally formed. This recombinant plasmid new gene into it from a bacterium. Okay, for general knowledge, I'm going to tell you something very basic which you're not knowing. ये था हमारा डोनर सेल और ये है वो वेक्टर सेल. वेक्टर का मतलब जो कैरी करके उसको मल्टीप्लाई करेगा. तो हमने लेट्स से ये डोनर एक इंसान का सेल है, ह्यूमन सेल है, जिसमें से हमने ये एक छोटा सा हिस्सा, डीएनए तो बहुत लंबा है बट हमने उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, राइट. हमने इतना छोटा सा हिस्सा ले लिया, वो ये रेड कलर दिखा रखा है. अब इस छोटे से हिस्से को हमें इसके अंदर ट्रांसफ़र करना होगा. आप पूछोगे कि इसके अंदर ट्रांसफ़र करने के मतलब ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत क्यों है?
बिकॉज ई कोलाई को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वी कैन मेक लॉट ऑफ शॉर्ट वी कैन से वी कैन मेक लॉट ऑफ क्लोन्स. सिमिलर, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही प्लास्मिड है ना, प्लास्मिड मीन्स डीएनए. अभी हमारे पास एक ही प्लास्मिड है, लेकिन वो ई कोलाई, ये बैक्टीरिया का प्लास्मिड है. अब हमें जो प्लास्मिड चाहिए वो है हमारा रिकॉम्बिनेंट. मतलब दिस वन इज द नॉर्मल डीएनए. हमारी चॉइस, हमने ह्यूमन सेल में से हमें जो चाहिए, लेट्स से अभी इंसुलिन का इंजेक्शन के लिए हमें इंसुलिन चाहिए, तो हमने ये जीन ले लिया एक इंसान के सेल में से एंड इट हैज़ बीन प्लेस्ड हियर. ओके, सो द नेक्स्ट the plasmid. Lastly, the DNA. This enzyme plasmid is finally. Okay. जो हमारा पहले डीएनए था उसको हमने नया डीएनए बनाया है, एंड दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ओके, जो हमारा पहले डीएनए था कैसा था, टोटल ग्रीन कलर का प्लास्मिड वर्ड यूज़ किया था. प्लास्मिड इज़ द वर्ड यूज फॉर डीएनए ऑफ द बैक्टीरियोफेज और ऑफ द वेक्टर, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का, क्योंकि हमें बैक्टीरिया को ही लैब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम किसी इंसान को लैब में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. बैक्टीरिया इज स्मॉल, इट टेक्स लेस स्पेस, राइट. सो बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करके हमने अभी एक प्लास्मिड बनाया है रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में. हमें जो डीएनए चाहिए था वैसी हमारी वेराइटी, हमारा चॉइस, राइट. वी वांटेड इंसुलिन फॉर्मिंग, दैट्स एन एग्जाम्पल. हमें इंसुलिन बनाना है तो ऐसा जीन हमने निकाल लिया जो कि इंसुलिन बनाएगा, एक बॉडी के अंदर इंसुलिन बनाएगा. तो हमने वो इंसुलिन वाले जीन को इंसर्ट किया एक नॉर्मल प्लास्मिड, नॉर्मल डीएनए के अंदर. अब जो हमारे पास ये नया डीएनए है ये इंसुलिन वाला है, हमारी इच्छा के हिसाब से काम करने वाला डीएनए, राइट. सो दिस डीएनए इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, right. So this technique is called as recombinant DNA technology, जो कि establish किसने किया था, स्टैनले कोहेन and Herbert Boyer. Please remember this, okay. Who established this technology, recombinant DNA technology? Stanley Cohen and Herbert बोयर, जिससे हमारे पास हम लोगों ने जेनेटिक को मॉडिफाई किया, हमारे जो जीन को, मतलब हमारे डीएनए को मॉडिफाई किया. वी आर टॉकिंग अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टूल्स. अभी जो हमने रिकॉम्बिनेंट किया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, उसमें कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ी, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी कि हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकें. We'll understand that next.